Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Now question number 9. Anna Patil from Thane, Maharashtra supplied vacuum cleaner to a shopkeeper in Vasai, Mumbai for the taxable value of rupees 14,000 and GST rate of 28%. Shopkeeper sold it to customer for the same rate GST for rupees 16,800 as taxable value. Find the following. First, amount of CGST, SGST shown in the tax invoice issued by Anna Patil. Second, amount of CGST, SGST charged by shopkeeper in Vasai. And third, what is the CGST, SGST payable by the shopkeeper in Vasai at the time of filing the return. Okay. Now here, GST rate is 28%. Anna Patil is selling some product to shopkeeper. Shopkeeper is selling it to customer. What is selling price of Anna Patil? That is 14,000. So for him, it is output tax, right? So I'll write output tax for Anna Patil is what? 14,000 ka 28%. So I'll write 28% of 14,000 rupees. Okay, two zeros will get cancelled. Multiplication करेंगे. First we'll keep 0. 28 fours are 112 carries 11. 28 ones are 28. 28 plus 11 39. So it is 3920 rupees. Correct. This much tax Anna Patil will collect as output tax, that is called GST, right? So if GST is 3920 rupees, correct? So what is amount of CGST, SGST shown in the tax invoice issued by Anna Patil? So Anna Patil will issue a invoice, correct? So CGST, SGST क्या होगा इसका? Half of. So I'll write CGST equals to SGST is equals to 3920 divided by 2. 2 ones are 2, carries 1, 19 हो गया. 2 nines are 18, carries 1, 12 हो गया. 2 6 are and 0, that is 1960 rupees. तो our first answer लिखेंगे यहाँ पे. क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST जो पूछा है उसी तरह से लिखते हैं. अमाउंट ऑफ CGST and SGST shown in the tax invoice of Anna Patil equals to rupees 1960 each. 1960 is rupees का CGST और उतना ही अमाउंट का SGST. Now, shopkeeper is selling the product to customer. Shopkeeper has already purchased from Anna Patil. So for purchasing, he has paid GST, and that GST is input tax credit for shopkeeper. कितना GST पेमेंट किया था? 3920 rupees का. So this is input tax credit. We'll say input tax credit for shopkeeper is rupees 3920. Correct. Now shopkeeper has sold it to customer for a rate of 16,800 with GST 28%. So that is output tax is GST of shopkeeper. Shopkeeper कितना GST कलेक्ट करेगा? So that is 28% on 16,800 rupees. Correct? Two zeros will get cancelled. Now 168 into 28 मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखाया, देखो टाइम बचाने के लिए. कितना अमाउंट है? 4,704.
So it is equals to rupees 4704. This is what? This is GST collected. Rupees 4704. So CGST and SGST हाफ ऑफ होगा. कितना होगा? हाफ ऑफ दोनों का. That is 4704 divided by 2. 2 2s are 2 3s are 5s are 2 2s are 2352 rupees का कितना होगा? CGST SGST. Correct. This is CGST SGST to be shown in tax invoice by the shopkeeper. ये हमें पूछा था यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ CGST SGST चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसई. तो राइट, आप अपना आंसर लिखेंगे. अमाउंट ऑफ CGST and SGST charged by shopkeeper equals to rupees 2352 each. Correct. And last question, what is the CGST and SGST payable by shopkeeper in Vasai? Now कितना CGST SGST पेमेंट करेगा? अभी पेमेंट करेगा कैसे करेगा? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके करेगा. राइट. तो आई विल से GST पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स. फॉर्मूला था आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो आउटपुट टैक्स कितना है? 4704. इनपुट टैक्स 3920. तो 4704 माइनस 3920 is equals to 4 minus 0 4. 10 minus 2 is 8. 6 minus 9 not possible. 16 minus 9 is 7. 784 rupees. Correct. So CGST and SGST will be half of 2 3s are 2 9s are 392 rupees. So final answer, थर्ड क्वेश्चन का आंसर. 3 क्वेश्चन पूछे थे, 3 आंसर आने चाहिए. राइट. थर्ड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द CGST SGST पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. तो CGST and SGST payable by shopkeeper at the time of filing the return is equals to rupees 392 each. This is our final answers. 3 क्वेश्चंस पूछे थे, आपके 3 आंसर्स आने चाहिए. अंडरस्टूड. थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, बट अगेन क्लोज चार्ट समझ में आना चाहिए. अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को माल बेचा और अन्ना पाटिल ने किसी से परचेज किया, वो कुछ बताया तो था नहीं. तो अन्ना पाटिल के लिए डायरेक्ट कहां से चालू किया हमने? आउटपुट टैक्स से. राइट. देन आउटपुट टैक्स इज नथिंग बट GST. तो CGST SGST हाफ ऑफ हो गया. तो अन्ना पाटिल अपने टैक्स इनवॉइस में क्या दिखाएगा? CGST SGST का अमाउंट दिखाएगा. राइट. नाउ शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल से परचेस किया था, तो शॉपकीपर ने जो अन्ना पाटिल को पेमेंट किया GST का, ये GST का पेमेंट शॉपकीपर के लिए क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट. राइट. नाउ शॉपकीपर हैज सोल्ड इट टू कस्टमर एट अ रेट ऑफ 16,800. तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्शन हुआ, दैट इज आउटपुट टैक्स. तो दैट इज GST. करेक्ट. उसका हाफ हो गया CGST SGST. उतना अमाउंट CGST SGST जो कलेक्शन किया, वो शॉपकीपर कहां दिखाएगा? टैक्स इनवॉइस में दिखाएगा फॉर द कस्टमर. राइट. तो दिस इज चार्ज बाय द शॉपकीपर. करेक्ट. नाउ GST पेएबल.
नाउ जीएसटी पेएबल, जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसका डिफरेंस आ गया 784 रुपीज. सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी हाफ ऑफ दैट, एंड दैट इज अ चार्ज पेएबल बाय द शॉपकीपर एट द while फाइलिंग द रिटर्न्स. अंडरस्टूड? अच्छी तरीके से एग्जाम्पल करना है. लेट्स स्टॉप द कैंड. थैंक यू. Now question number 10. For the given trading chain, prepare the tax invoice 1, 2, 3. Tax invoice 1, tax invoice 2, tax invoice 3. GST at the rate of 12% was charged for the article supplied. Now here in this case, and then there are 3 questions. Okay, वो उसको हम बाद में देखेंगे. First, here in this chain, there is a wholesaler who is selling product to distributor. Distributor is selling to retailer, and retailer is finally selling to the consumer like us. Concept is clear? Okay. Now for let's talk about the wholesaler first. Wholesaler के लिए taxable amount कितना दिया है? It is 5,000 rupees. Correct? So that means he is selling the product article to distributor for the price of 5,000 rupees. So it is his, he will collect output tax for that, right? So I'll say output tax for wholesaler is 12% GST on rupees 5,000. Two zeros will get cancelled. 12 into 50, 12 5 are 60, and 1 0 is rupees 600. Correct? So this output tax is nothing but the GST collected. So his GST is rupees 600. Can you tell me CGST and SGST? Half of this, that is 600 divided by 2, that is rupees 300. Correct? So for wholesaler, wholesaler क्या करेगा, अपने टैक्स इनवॉइस में जीएसटी बताएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. करेक्ट? तो जो फर्स्ट आंसर है ना, उन्होंने क्या पूछा हमें, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस 1, 2, 3. तो फर्स्ट टैक्स इनवॉइस किसका बनेगा, होलसेलर का बनेगा. तो वो टैक्स कितना पेमेंट करेगा, पेमेंट कलेक्ट किया उसने 300 रुपीज का सीजीएसटी एंड 300 रुपीज का SGST. So I'll write first tax invoice number 1, CGST is rupees 300 and SGST is also rupees 300. This is tax invoice number 1. किसने बनाया ये, होलसेलर ने बनाया. Right? Now let's talk about the second, that is distributor. Now for distributor, what is taxable value 6,000. बट डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी से तो माल परचेस किया, किससे, होलसेलर से. करेक्ट? तो जो होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर ने जो जीएसटी दिया, वो उसके लिए क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट. So for wholesaler, what is input tax credit? It is the GST he has paid to wholesaler. Distributor के लिए ITC क्या बन गया, what tax he has already paid to previous party, that is wholesaler. तो कितना पेमेंट किया था GST का, 600 रुपीज. तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 600 रुपीज क्या बन गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये आपको समझ में आना चाहिए. राइट? नाउ his output tax means how much GST he will collect. अभी वो जीएसटी किससे पेमेंट कलेक्ट करेगा, रिटेलर से, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर विल सेल द प्रोडक्ट टू रिटेलर. करेक्ट? अभी वो रिटेलर को कितने में बेच रहा है, 6,000 रुपीज में. राइट? So output tax will be 12% GST on 6,000 rupees. Two zeros will get cancelled. 12 6 are 72 and 1 0, 720 रुपीज का वो जीएसटी पेमेंट कलेक्ट करेगा. करेक्ट? अभी उसने इतना पेमेंट तो कलेक्ट किया, समझ में आ रहा है.
अभी उसको क्या करना पड़ेगा, इसको, ये हो गया उसका जीएसटी, तो ऐसे जीएसटी इज इक्वल्स टू 720 रुपीज. So CGST and SGST will be half of, correct? हाफ कितना होगा 720 का? It is rupees 360. Correct? So tax invoice number 2. Tax invoice 2. First tax invoice CGST SGST आ गया. विथ सेकेंड टैक्स इनवॉइस के लिए क्या आएगा? 360 रुपीज. CGST rupees 360 and SGST rupees 360. करेक्ट. लेकिन वो गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा? ये तो टैक्स इनवॉइस बन गया, राइट? वो भी तो निकाल लेते हैं अभी, राइट? तो गवर्नमेंट को कितना वो पेमेंट करेगा, कोई बता सकता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट. तो जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, आउटपुट टैक्स 720, इनपुट टैक्स क्रेडिट 600, 720 माइनस 600 दैट इज रुपीज 120. करेक्ट. अभी वो गवर्नमेंट को अगर इतना जीएसटी पेमेंट कर रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या हो गया उसका? हाफ ऑफ, राइट? सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू 120 का हाफ दैट इज रुपीज 60. इतना टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा. हालांकि उसने कलेक्ट किया है 720 रुपीज. CGST has 360, SGST also 360, बट उसने ऑलरेडी पेमेंट किया था ना 600 का, राइट? तो इसके लिए उसको क्या मिल गया? बेनिफिट मिल गया. गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा सिर्फ 60 रुपीज CGST, 60 रुपीज SGST. ओके. नाउ ये हो गया होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. अब जाएंगे रिटेलर के पास, करेक्ट? तो रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर has already purchased the product from distributor and now he is selling the product to consumer, correct? तो रिटेलर अभी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस कर रहा है, तो रिटेलर के लिए जो आउटपुट टैक्स था किसका? डिस्ट्रीब्यूटर का. वो रिटेलर के लिए क्या बन गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो आई राइट आउटपुट टैक्स, देखिए यहाँ पे कितना है? 720 रुपीज का है ना. तो मैं ये लिखता हूं यहाँ पे फॉर रिटेलर, for retailer input tax credit is nothing but the output tax of distributor. 720 रुपीज था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया इसका? 720 रुपीज का हो गया. रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? 720 रुपीज का. नाउ रिटेलर is selling the product to consumer with a taxable value 6,500 rupees. तो ये taxable value पे क्या आएगा? आउटपुट टैक्स. तो ऐसे आउटपुट टैक्स इज 12% जीएसटी रेट. और क्या प्राइस में बेच रहा है? 6,500 रुपीज पे. तो 2 zeros will get cancelled. 12 5s are 60, carry 6, 12 6 are 72 and 6 is 780 रुपीज. इतना आउटपुट टैक्स हो गया रिटेलर का, करेक्ट? तो दिस इज जीएसटी कलेक्टेड बाय द रिटेलर. किससे कलेक्ट किया उसने? कंज्यूमर से, करेक्ट? तो व्हाट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? हाफ ऑफ दिस, करेक्ट? 2 3s are 6, 2 9s are 18, 390 rupees, correct? So I'll say tax invoice, third answer, tax invoice number 3. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने बोला है फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3. तो फर्स्ट टैक्स इनवॉइस हमने बनाया था
सेकेंड टैक्स इनवॉइस हमने बनाया, अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, राइट। तो थर्ड टैक्स इनवॉइस सीजीएसटी, एसजीएसटी हाउ मच 390, तो सीजीएसटी is rupees 390, SGST is also rupees, SGST is also rupees 390, correct. Now what is a GST payable? अभी इतना तो टैक्स वो उसने कलेक्ट किया है, बट उसने ऑलरेडी इनपुट टैक्स दिया ना 720 रुपीज का, करेक्ट। तो उसका टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज 780 माइनस 720। तो ऐसे जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर टू गवर्नमेंट equals to output tax 780 minus input tax credit 720, that is rupees 60, करेक्ट। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना आएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी हाफ ऑफ दिस, ₹30 each। कितना समझ में आ रहा है? नाउ फर्स्ट prepare the statement of GST. This is the first question. Prepare the statement of GST payable under each head by the wholesaler, distributor, retailer at the time of filing return to the government. Right? तो एक यहाँ पे हम लोग टेबल फॉर्मेट करेंगे। Let's draw one table. I think थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। Okay. हमें ये 3 चाहिए, जीएसटी, पीजीएसटी, जीएसटी, ओके, जीएसटी, पीजीएसटी, GST, correct. Now who three are people? Who are they? First one is wholesaler, second is distributor, and third is retailer. Okay. लास्ट में हम लोग लिखेंगे टोटल। इस तरह से मैं एक टेबल फॉर्मेट कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी, फर्स्ट होलसेलर ने कितना जीएसटी का पेमेंट किया, कितना किया था, 600 रुपीज का पेमेंट किया, राइट। सो होलसेलर के लिए क्या हो गया, जीएसटी इज ₹600, out of which CGST is ₹300 and SGST is also ₹300 होलसेलर के लिए, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टैक्स इनवॉइस है, बट डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट कितना कर रहा है गवर्नमेंट को, करेक्ट। तो ही इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹60, दैट इज टोटल पेमेंट ऑफ ₹120। ऐसे total GST collected by distributor is ₹120, 60 rupees PGST, 60 rupees SGST, करेक्ट। नाउ रिटेलर, रिटेलर के लिए ये तो टोटल टैक्स है, बट जीएसटी पेएबल कितना है गवर्नमेंट को, इट इज ओनली 60 रुपीज जीएसटी एंड 30 का सीजीएसटी एसजीएसटी, ऐसे ₹60, ₹30 over here and ₹30 over here, करेक्ट। तो टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलेगा ये सारे प्रोसेस में, 600 प्लस 120, 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 इज 780 रुपीज का टैक्स मिलेगा, करेक्ट। तो उसमें सीजीएसटी कितना होगा, इट इज ₹390,
and SGST is also rupees 390. This is our first answer. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर. एज अ कंज्यूमर हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, राइट? तो एट द एंड कंज्यूमर विल पे कितना, आप कुछ बोल सकते हैं? कंज्यूमर किससे प्रोडक्ट ले रहा है? रिटेलर से, करेक्ट? रिटेलर क्या प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहा है? रिटेलर इज सेलिंग, टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 6,500 प्लस वो कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है? 780 रुपीज का. सो 6,500 का प्रोडक्ट टैक्सेबल वैल्यू प्लस 780 रुपीज का जीएसटी कंज्यूमर दे रहा है किसे? रिटेलर को, राइट? तो एज अ कंज्यूमर हैज टू पे 6,500 रुपीज एज प्रोडक्ट प्राइस प्लस 780 रुपीज एज व्हाट? जीएसटी, राइट? तो टोटल कितना देगा? 0, 8 and 0 is 8, 7 and 5 is 12, carries 1, 7,280 rupees he will pay to the retailer. Concept is clear. Now third question, right? Which of the invoices issued are B2B and B2C? Question number 3. Okay. First, wholesaler is selling to distributor. Wholesaler to distributor क्या हो गया? B2B, right? Wholesaler to distributor. होलसेलर बिजनेसमैन है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस कर रहा है, तो ये हो गया B2B. नाउ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, distributor is businessman, retailer is also businessman, so again B2B, correct? And retailer to consumer, retailer to consumer, कंज्यूमर किसको आगे जाके बेचेगा क्या? नहीं ना, तो क्या हो गया? B2C. Concept is clear. So these are the 3 questions which were asked. और उसके पहले टैक्स इनवॉइसेस बनाना था, वो हमने बनाए सारे टैक्स इनवॉइसेस. आ गया समझ में? बड़ा बड़ा एग्जांपल है, आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बट जैसे कि मैंने बोला, एक बार अगर फ्लो चार्ट ध्यान में आ गया, देन एवरीथिंग इज इजी. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.